नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और एक बार फिर मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नवमी की बहुत 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 बधाई। आज महानवमी है, कल विजयदशमी है, तो कल के लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जहां तक दर्शकों का प्रश्न है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, it's been a great week as far as India is concerned. Indian cricket has done so well. बिल्कुल सर। It's absolutely wonderful. Virat Kohli has proven again that he's the greatest of all time as far as the one-day game is concerned. He's absolutely brilliant. He's just one short of Sachin Tendulkar's ODI centuries, that is one-day international centuries, 50 in the 50-over format. And I mean, it was absolutely fantastic watching him lead India to so many victories. Really and truly wonderful. But what you know what the other thing which is somewhat strange for me is I agree, you know, there is something called freedom of speech and expression, which is okay. You have certain people, like for example recently on Twitter, now called X, a very well-known journalist with The Wire actually said that she is ashamed of being an Indian considering the behavior of the Indian crowd in अहमदाबाद में जो इंडियन क्राउड का जो बिहेवियर था, जो जय श्री राम के नारे लगाए गए, सो शी इज अशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्होंने उनको लिखा कि आई वेलकम यू, आई इनवाइट यू टू कम टू पाकिस्तान। आप पाकिस्तान आ जाइए। अगर आप शर्मिंदा हैं भारत में तो आप पाकिस्तान आइए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? एंड आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, हाउ कैन पीपल ऑब्जेक्ट टू जय श्री राम ओवर हियर इन इंडिया when you don't object to Allahu Akbar in Pakistan? Sir, these are the people that Prime Minister Modi described as the people who don't want Modi to win even if India is losing. That's it. They would prefer, India lose rather than praise Mr. Modi. Now, this kind of sentiments, these are people right around the minorities. People hate them, people don't like them, but somehow they have some voice from somewhere or the other. They just pop up from somewhere, some corner of the world, they just come in and give their opinions. अरे प्रदीप जी, they आपको are याद not होगा part of the country at all. Today, if you see what as you said, what we displayed, what the crowd displayed at Ahmedabad in Gujarat in the match, Indo-Pak match, was India's determination. Look at the way, as you said, India has been winning. Virat playing, Everybody the captain, Rohit Sharma playing, Mohammad Shami, Mohammad Siraj. If both of them don't play, then you got Rahul playing. You Yes. got you got these 4 or 5, 6 batsmen out the top. They're always performing, and the confidence level and the team unity, the way it stands today, is fantastic. And the crowd is showing what And Mr. do Modi remember, is Pradeep ji, echoing Mr. Modi's leadership. That प्रदीप जी, घर में घुस के मारेंगे. Do remember, the crowd in Ahmedabad was reacting to Mohammad Rizwan offering namaz in the middle of the cricket field. उसके पहले किसी ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया साहब। आप क्रिकेट फील्ड में नमाज ऑफर कर रहे हैं, वो ठीक है। आप इस तरीके से आप किसी श्रीलंकन प्लेयर को, इट इज ऑन रिकॉर्ड, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है। Naturally, the crowd will react. Shahid Afridi comes in India and he says, I am with the Kashmiri people. Yes. ये हिम्मत है और these guys, because this is a rogue nation. It's a rogue nation and the rogue players, उनके ideology. And you have rogues in India who are supporting them. Yes. सीधी सादी बात है। So there should have been furore when Shahid Afridi came in India and said, I am with the Kashmiri people. कौन सा इंडियन प्लेयर डोंट मिक्स क्रिकेट विद पॉलिटिक्स। कभी बोलते हैं कि बलूचिस्तान में जो आप कर रहे हो दैट इज अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आज तक इन बहन जी ने आज तक कभी ये नहीं बोला है। Exactly. इन बहन जी ने आज तक कभी पाकिस्तान को कभी भी ये नहीं कहा है कि हम शर्मिंदा हैं पाकिस्तान से जो उन्होंने किया 26/11 को लेकर के। यहाँ पे आज तक इनकी जबान से ये नहीं कहा है। और दूसरी चीज, जब आरिफ मोहम्मद खान का इन्होंने इंटरव्यू किया, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक किताब निकाली जो देवबंद ने पब्लिश करी है, उसमें जिहाद की जो डेफिनेशन दी है देवबंद ने, द जिहाद इज अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, ये किताब में लिखा है। एंड दैट बुक इज अलाउड इन इंडिया। सो ही हैड आस्क्ड हर, मैडम वुड यू लाइक टू गो एंड लिव इन पाकिस्तान, वुड यू लाइक टू गो एंड लिव इन इराक, वुड यू लाइक टू गो एंड लिव इन सीरिया?
पाकिस्तान में, जहां पर हर फ्राइडे को किसी ना किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट होता है। और मेरा ये कहना है, इन लोगों को अगर हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो भैया ऐसी जगह पर जाओ जहां पर आप शर्मिंदा ना हो। एंड द कंट्री हैज डिस्प्लेड क्लियर, वीजास नहीं दिए, पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं दिए, उनके कोई इसको आने नहीं दिया। जो अप्रूव्ड क्रिकेटर्स था उनको भी वीजा देने में डिले कर दिया। दे हैड टू रियली स्ट्रगल एंड दैट्स द वे यू गोइंग टू शो योर रिस्पांस। यू हैव टू शो योर रिस्पांस। नो कोई भी इधर आके थप्पड़ मार के चला जाता है, इधर आके आप क्रिकेट खेलने आ रहे हो कि हम बोले कि ये पूरे अगर कुछ जीत गया तो ये पूरे इस्लाम के लिए, जीत गया तो पैलेस्टाइन के लिए। And we still have that man over here as part of the commentary team. Exactly. Waqar Yunus is still part of that commentary team, even though he apologized later. But that's what he said. So, and my point is. Now, then this has forced him to say that I'm not Pakistani, I'm an Australian, half Australian. Now that's the stand he has taken. I'm not Pakistani, I'm also Australian, I'm half Australian. Well, Marcus Stoinis, after defeating Pakistan, actually said Jai Shri Ram. By the way, there's a video recording of Marcus Stoinis saying Jai Shri Ram after defeating Pakistan. Now, my point is, what's the matter with you people? देखिए साहब, आपको याद होगा हमारी जो 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, उसमें आई थिंक देयर वर 4 or 5 Muslims. Exactly. Nobody even bothered कि इतने मुसलमान हमारे टीम में खेल रहे हैं. They're all Indians. So is the case now. Our main strike bowlers, by the way, our main lethal weapons, they're both called Muhammad. Exactly. So, I mean, come on. All I'm saying is, if people like that journalist of the wire, you prayer. I don't think prayer on the field expose करने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, ये गलत है। मेरा ये कहना है कि जो शर्मिंदा है भारतीय होने पर, आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पर आपकी शर्मिंदगी कम हो जाए या जहां पर आप शर्मिंदा ना हो। मेरा तो सिर्फ ये कहना है। बाकी व्हाट डू यू थिंक, जहां तक हमारे दर्शकों का सवाल है, वो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर लिखें। प्लीज डू सेंड इट एंड एज फार एज आवर चैनल इज कंसर्न, प्लीज डू शेयर इट, प्लीज डू लाइक इट एंड डू बी काइंड इनफ टू सब्सक्राइब टू इट। वो क्या है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आता है, वो कभी कभी अगर हमारे जो प्रोडक्शन टीम वाले दिखा दें तो अच्छा रहेगा। That's it. Like, share, subscribe. And comment, most importantly. And at the moment with us, we have our old friend, Mr. Milind Kapde. Milind Kapde साहब, नमस्कार. नमस्ते. How are you, sir? How are you? Looking so colorful. क्या बात है सर, जबरदस्त. Your shirt is matching the background. Life is full of color. Thank you. जबरदस्त सर, जबरदस्त. क्या बगलामुखी का पाठ करके आ रहे हैं क्या? तो येलो कलर और मस्टर्ड और वो मतलब क्या जबरदस्त हो गया है। वेरी स्पिरिचुअल। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। सर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल विजयदशमी की भी शुभकामनाएं जी, विजयदशमी की भी शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। और जितने रावण हो उनका वध हो जी, जितने रावण हो, जितने महिषासुर हो उनका भी वध हो। सीधी साधी बात है। अच्छा मिलिंद काबड़े साहब, आप ये बताएं, कहां से शुरू करना चाहेंगे? आप उद्धव ठाकरे जी से शुरू करना चाहेंगे कि हमारे मित्र समीर वानखेड़े साहब से शुरू करना चाहेंगे? आप बताएं। मैं चाहता हूं कि आपने क्रिकेट का विषय छेड़ा ही है जी, तो क्रिकेट के विषय पर कुछ बोला जाए। जी बताएं। क्रिकेट में जिस प्रकार आज की तारीख में भारतीय टीम खेल रही है वो तो काबिल तारीफ है साहब। इतना बढ़िया मैंने खेलते हुए कभी किसी टीम को देखा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम 2011 वो टीम थी और अब ये वाली टीम है। मतलब इतना जबरदस्त है, कहने की हद नहीं। और आप ये देखें अहमदाबाद में जो जय श्री राम के नारे लगे, अरे भाई अगर आप, मेरा ये कहना कि अगर आप क्रिकेट फील्ड पर अगर आप नमाज पढ़ोगे, पाकिस्तान के हर ग्राउंड पे हिंदुस्तानी टीम को अल्लाह अकबर के नारे सुनने पड़ते हैं, तो यहाँ जय श्री राम में आपको क्या प्रॉब्लम है? बताइए मिलिंद काबड़े साहब। सर मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा इस विषय के ऊपर। सर 2 मिनट लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्रिकेट तो खेलना चाहिए, ठीक है, क्रिकेट खेलना चाहिए, इंटरनेशनल टीम के साथ में क्रिकेट खेलना चाहिए, बट ऐसे कंट्री के साथ में, ऐसे देश के साथ में क्यों क्रिकेट खेलना चाहिए जो देश हमेशा से ही हम लोगों के ऊपर आक्रमण करते आ रहा है, अटैक करते आ रहा है, और हमेशा से ही हम लोगों को मतलब अलग अलग प्रकार से हम लोगों के ऊपर लांछन लगाते आ रहा है या किसी न किसी रूप में तकलीफ देते आ रहा है। ऐसे पाकिस्तान देश के साथ में हम क्यों क्रिकेट खेले? सबसे पहले तो विषय यहीं पर आ जाता है।
अब मैं कुछ हाइलाइट्स आप लोगों को बताना जी चाहूंगा। बताइए सर। 1989 में कराची पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ था। उस समय अपने क्रिकेट इंडियन टीम के कैप्टन कृष्णमाचारी थे। कृष्णमाचारी श्रीकांत कृष्णमाचारी जी, जब, यस हाँ श्रीकांत जी, तो श्रीकांत जी के ऊपर वहां के लोगों ने हमला कर दिया था। जी किया था। 19 फिर से 1989 उसी वर्ष में कृष्णा वहां के इंडियन टीम के ऊपर वहां के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। अब ये पत्थरबाजी का तो नया सिलसिला नहीं है इनका, ये तो उस 1989 से चला आ रहा है इनका। तो उस समय पत्थरबाजी भी कर दी थी इन लोगों ने। 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में चल रहा था, उस समय वहां के फैन, वहां का जो क्रिकेट का फैन था पाकिस्तानी, वो रिकॉर्ड करता है और ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उस रिकॉर्ड में बोलता है कि बाप कौन है, बाप कौन है। मतलब इनको बाप कौन है ये भी नहीं पता है अभी तक। 2019 में 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानियों ने इंडियन टीम के साथ में गाली गलौज कर दी, वो रिकॉर्ड किया और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। जी वकार यूनुस कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने जो हजारों हिंदुओं के सामने जो नमाज पढ़ी वो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो स्पेशल थी। फिर जय श्री राम के नारे अगर लगते हैं तो फिर इन लोगों को तकलीफ क्यों आ रही है? सर, इन्हीं लोगों को नहीं, हमारे खुद के लोगों को। एक है बहन जी अरफा, क्या नाम है उनका, अरफा खानूम शेरवानी, वो तो उधर की है, द वायर की रिपोर्टर है वो कहती है मैं शर्मिंदा हूं भारतीय होने पर। तो और छोड़िए, भारत से किसी ने नहीं कहा कुछ। मैं कहा बोल भाई, ये पागल औरत है, जो मर्जी इसको बोलने दो। बिल्कुल। अरे दानिश कनेरिया पाकिस्तान का जो बॉलर है, उसने बोला देन आई इनवाइट यू टू कम टू पाकिस्तान, आप पाकिस्तान आ जाइए ना, और यहां पर बैठ करके बोलिए, देखते हैं आपको कितनी आजादी मिलेगी। मतलब ये क्या है यार, हद होती है। मगर वकार यूनुस थोड़ा बदल गया। वकार यूनुस देश के लीडरशिप के एग्रेसिव नेचर देख के बोला कि मैं पाकिस्तान कम हूं, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा हूं। अभी ऑस्ट्रेलियन बन गया वकार यूनुस। पाकिस्तानी कमेंटेटर बाजिद खान कहते हैं कुफ्र टूट गया T20 वर्ल्ड कप में जी। कुफ्र टूट गया, इसका मतलब होता है काफिर यानी गैर मुसलमान, उसका जो गुरूर है वो टूट गया और वो हार गया। मतलब ये क्या शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। सोहेल तनवीर पाकिस्तानी क्रिकेटर लाइव टीवी पर बोलता, हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदू नाम से गाली दे रहा है। सोहेल अख्तर ने भी गजवाए हिंद का प्रमोशन कर दिया उसने तो जी। अब ये गजवाए हिंद जो मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये आधे 50% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन को इंडिया में ये पता नहीं है कि गजवाए हिंद क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अपील करूंगा कि ये गजवाए हिंद जो ये लोग करते हैं उसका मतलब ढूंढिए, वो क्या बोलना चाहते हैं गजवाए हिंद के बारे में, वो ढूंढिए, वो पता लेकिन मिलिंद कापड़े जी, इसमें गलती तो हमारी है, गलती तो भारत की है। जहां तक गजवा हिंद की बात है, ये आयत जो है ये तो हमारी मस्जिदों से भी बोली जाती है, गजवा हिंद वाली जो आयत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल यही दुर्दैव है हमारे इस भारत का। लेकिन एक चीज है जो आपने बात कही है, एक चीज है जो आपने बात कही है, इसके बारे में बड़ा गौर फरमाना चाहिए। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट, इट इज इनफैक्ट अ टेररिस्ट स्टेट, सो व्हाई शुड वी प्ले क्रिकेट विद देम? सीधी सादी बात है। अरे अब जाने दो ना वर्ल्ड कप क्या है, क्या है। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग अगर उनसे नहीं खेलेंगे तो क्या क्रिकेट इस दुनिया से खत्म हो जाएगा या क्रिकेट बंद हो जाएगा? और हमारा देश का क्या नुकसान होने वाला है उनसे नहीं खेला तो? क्या नुकसान होने वाला है? रेवेन्यू जो रेवेन्यू क्रिकेट के जरिए जो रेवेन्यू जो जमा करने वाले जो लोग हैं उनका निश्चित नुकसान हो जाएगा, ये तो पक्का। क्योंकि जब सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट में जो सट्टेबाजी होती है या फिर जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, बट इस बार तो मुझे नहीं लगता कि रेवेन्यू में कुछ खासा फर्क आया होगा, क्योंकि लोगों ने धुतकार दिया इस विषय को ज्यादा। मतलब अभी पहले जैसा सट्टेबाजों ने कमाई की है, सर सट्टेबाजों ने कमाई की है, लेकिन वो भारत को नहीं मिलता, वो बीसीसीआई को नहीं मिलता है, वो तो बाहर मिलता है। सर क्या करेंगे उसके बारे में? बट ऑन वन थिंग आई एग्री विद यू, वी रियली हैव टू टेक अ कॉल कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ रंग भेद की नीति को लेकर के भारत ने यह निर्णय लिया कि साउथ अफ्रीका के साथ हम लोग कोई भी
खेल संबंध नहीं रखेंगे। इसी प्रकार आतंकवादी नीतियों के को लेकर के हमें ये एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा कि पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेले नहीं। क्योंकि देखिए साहब, ऑन दिस थिंग वन स्मॉल थिंग, क्योंकि आपने सब्जेक्ट शुरू किया है, दिस इज माय व्यू ऑन दिस, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी साहब। जैसे सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो लोगों को पूरे दुनिया में ये गलतफहमी हो जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट भी खेलता है। आप समझ गए ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी होता है। ये पूरी दुनिया में लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि एक्चुअली पाकिस्तान इज नॉट ए टेररिस्ट स्टेट। हम लोगों को ये बात कहनी होगी कि पाकिस्तान असल में एक आतंकवादी देश है। हमारे खिलाफ आज तक, वेरी ट्रू, तो ये आतंकवादी देश है। जब तक द फैक्ट इज, पहल तो हमें करनी होगी। लॉस होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। आईसीसी इवेंट के अंदर आपको कहेंगे आप नहीं खेलते, भाई ना खेलो, वी विल नॉट प्ले पाकिस्तान। हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे साथ। But the stand of the government was very good. BCCI was concerned with Asia Cup was concerned. It had nothing to do with Pakistan. हम जाएंगे भी नहीं और उधर हमसे खेलना भी नहीं है पाकिस्तान में। वो स्टैंड बहुत एकदम कामयाब रहा और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। बोले कि हम इंडिया नहीं आएंगे, हम ये करेंगे, हम मतलब मत आओ क्या आखिरकार आने ही पड़ा और खेलना भी पड़ा। बहुत अच्छा विषय मैं 2 दिन पहले सुन रहा था। पाकिस्तान का ये एक चैनल, न्यूज चैनल बता रहा था कि पाकिस्तान में 38 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल की गई डीजल ना होने के कारण। डीजल का पैसा नहीं दिया हम लोगों ने। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तानी टीम हमारे इंडियन फ्लाइट से आई है कि उन्हीं के फ्लाइट से है जिनके पास डीजल का सर हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। सर भारत में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मिलिंद कापड़े साहब, हम लोगों ने, भारत ने तो आदरणीय सम्मानीय बाबर आजम साहब जो पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन है, उनको प्राइवेट प्लेन लेकर के दिया सर। वो प्राइवेट प्लेन में गए हैं। बिल्कुल। तो क्या है ये? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ ये मेरी समझ के बाहर है। वो ये कहते हैं साहब क्रिकेट शुड नॉट बी लिंक्ड विद दिस। व्हाई शुड इट नॉट बी लिंक्ड? मैं तो सीधी सादी बात बोल रहा हूं। इट शुड बी लिंक्ड सर। अभी हाल में सितंबर में आपको याद होगा, एक हमारे कर्नल साहब, एक हमारे मेजर साहब, एक हमारे डिप्टी एसपी साहब और 2 हमारे जवान, 2 राइफलमैन, उनको उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो क्या उनकी जान का कुछ वो नहीं है हम लोगों को? क्या है ये? बट दिस इज नॉट डन। मोदी जी ने खुद प्रॉमिस किया था घर में घुस के मारूंगा। मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब घर में घुस के मारेंगे। ऐसा नहीं होता था। ये लास्ट का बदला हुआ नहीं है। लिया जाएगा, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। परंतु ये क्रिकेट का जब विषय आता है तो मेरा तो स्पष्ट मत है और हम मेरे जैसे कई भारतवासियों का ये स्पष्ट मत है कि हम लोगों ने ये जो क्रिकेट की नीति है पाकिस्तान के साथ में, ये बंद कर देनी चाहिए। और इस विषय को लेकर बंद कर देने, जब तक हमारा कश्मीर पूरी तरह से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक हम लोगों को पूरी तरह से हम लोगों को नहीं मिल जाता, ये लोग जब तक आतंकवादी गतिविधियां ये लोग हिंदुस्तान में, भारत की जमीन पर ये लोग जब तक बंद नहीं कर देते, इनके स्लीपर सेल्स जब तक यहाँ पर आना बंद नहीं हो जाता, पाकिस्तान में जब तक आतंकवादियों का ट्रेनिंग बंद नहीं होता, प्रशिक्षण बंद नहीं हो जाता, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की नीति पाकिस्तान के साथ में नहीं करेंगे। ऐसा एक निश्चित भारतीय सरकार ने इस विषय के ऊपर ध्यान। मिलिंद जी, जहां तक मैं देख रहा हूं और पाकिस्तान टीम को बहुत नोट किया हूं, उन सब मैच फिक्सर्स है। एवरी मैच उनका मेन रेवेन्यू मैच फिक्सिंग ही तो है। पगार तो मिलते नहीं है, पगार तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो कहां से हम लोग पैसा तो मैच फिक्सिंग एक ही जरिया हो उनको कि पैसा कमाने के लिए। और उनसे नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को ही नुकसान है, बाकी किसको नुकसान है? प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा, सट्टेबाजी का पैसा नहीं मिलेगा, मैच फिक्सिंग का पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। So as we all discussing, no cricketing relations with Pakistan at all. That is the best way to, जो बोल रहे हैं कि cut them into pieces. और बातें इनके साथ में नियति के साथ में, इनके साथ में नीति तौर पर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यही मतलब भारतवासियों। Sir, if we are serious about it, Milind Kapde साहब, if the government of India and the people of India are serious about it, if we are serious about combating Pakistan, people are serious about this, sir. So otherwise ठीक है, जैसे चल रहा चलने दीजिए। मतलब ये कोई मतलब नहीं है। I'll be very frank with you, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग जीत गए। फॉर एग्जाम्पल एशिया कप में भी अभी जीते और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप में भी अगर हम लोग जीत गए, अगर मान लीजिए हार जाते तो आपको मालूम है सामने से क्या होता? आपको मालूम है क्या क्या बोला जाता? जी। कुफ्र तोड़ दिया,
काफिरों की ऐसी की तैसी कर दी, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अरे अभी भी इतना कुछ बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने क्या वो कुछ तंत्र मंत्र पड़ा बॉल के ऊपर, उसके बाद जाकर के आउट कर दिया रिजवान को। अबे यार हद होती है। आई थिंक पाकिस्तान में दो ही चीज है, टेररिज्म एंड क्रिकेट। अब टेररिज्म तो अपने आप बिकॉज वो एक दूसरे को मार रहे, बिकॉज अभी पाकिस्तान में वही बात चल रहा है कि जो भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे 26/11 में और भी टेरर अटैक्स इंडिया में, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर ही एलिमिनेट हो रहा है। बोले ये जो भी नया सिलसिला चालू है 1 साल से कि मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट मारा गया, तो ये एक चीज है। क्रिकेट और टेररिज्म छोड़ के पाकिस्तान में है ही नहीं कुछ भी। सो वंस यू तो इतना कपकपाता है कि जैसे हमारी टीम के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण करते ये लोग, पत्थर फेंकते, गाली गलौज करते हैं या कुछ भी इस प्रकार का करते हैं, एक तो नीति के तौर पर इन लोगों के साथ में क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर इजराइल की तरह करना चाहिए। मोनिका, आपने जर्मनी में जब भी इजराइल के जब भी ये स्पोर्ट्स पर्संस को जब भी हॉस्टेज बनाकर उनके मार दिए गए थे, इजराइल ने 20 साल तक वो प्रतीक्षा की और 20 साल के अंदर सारे जितने टेररिस्ट थे उनको मुनिक में जो हुआ था जर्मनी 1972 1972 में तो सारे सभी को खत्म कर दिया इजराइल के मोसाद ने। उस प्रकार से यदि हमारे टीम के प्लेयर के ऊपर कुछ भी किसी भी प्रकार का पत्थर फेंका जाता है या कोई भी किसी भी प्रकार का आक्रमण किया जाता है, तो निश्चित इस प्रकार का कार्य जो मोसाद ने किया था उस प्रकार का कार्य हमारे इंडियन रॉ ने करना चाहिए। नहीं, जिस प्रकार से टेररिस्ट मर रहे हैं, मिलिंद जी आप जो बोल रहे हैं शायद वो सच ही हो रहा है। कनाडा में जो खालिस्तान का नाम लेके कैनेडियन इंडिया ब्लास्ट में जो अक्यूज थे उसको उड़ा दिया गया, 2-3 और खालिस्तानियों को उड़ा दिया, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों को उड़ा दिया, लंदन में, पाकिस्तान में। प्रदीप जी यहाँ पर हमारा काम जो है वो जो सिखों की माफिया है अलग अलग, वो आपस में कर रहे हैं सर। भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। वेरी फ्रैंकली। नो, बट हमारे वांटेड लोग तो मर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे वांटेड लोग मर रहे हैं। वी कैन ऑलवेज टेक क्रेडिट। We can always The take people credit who for what is are going on. the people who have committed crimes in India are ultimately facing the heat. लेकिन मिलिंद गावड़े जी आपसे सिर्फ आखिर में ये सवाल पूछना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेट रिलेशंस खत्म होने चाहिए या नहीं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल होना चाहिए सर, पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। और इस क्राइटेरिया पे खत्म होना चाहिए कि जब तक ये लोग पूरी तरह से आतंकवाद बंद नहीं कर देते, जब तक इनके देश से हमारे देश के प्रति सद्भावना या प्रेम निर्माण नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार का क्रिकेट या कोई भी ट्रीटी इनके साथ में नहीं की जाएगी। इनके साथ में जैसे कनाडा में अभी हुई, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि बहुत ही खटास चल रहा है और हम लोगों ने बहुत सी नीतियां उनके साथ में बंद कर दी है। इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ में भी होना चाहिए। दुरुस्त बात है, आई एग्री विद यू। वी हैव बीन सेइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि यू हैव टू गो आइदर दिस वे और दैट वे। ये हाफ वे मेजर्स नहीं चलते सर। ये बीच का, इधर का भी उधर का भी ये नहीं होगा। ये त्रिशंकु वाली जो रणनीति जो हमने अपना रखी है ये नहीं चलती। और जो इसको कंफर्म करने वाली बात है कि नो स्मॉलर पर्सन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हिमसेल्फ हैज सेड दैट इंडियन एजेंसीज आर कैरिंग आउट दिस अटैक। Now, what more greater confirmation that you require that how good the agencies works are? I feel very good about it. Even if we may or may not be involved, but if we are involved, no, but great. if somebody is endorsing, somebody of a developed nation, a prime minister endorses that Indian agencies are eliminating terrorists in my land, I mean, what more confirmation you require? It's a cause for celebration. Sir, if Canadian government is giving such a statement that the Indian raw officers or Indian agencies are eliminating the people, the terrorists from Khalistanis or the terrorists from Punjab, I truly appreciate this sentence of Canadian government. As well as I would like to mention one more thing in this कि कैनेडियन गवर्नमेंट यदि ऐसा बोलती है तो मुझे तो बहुत मतलब मेरे हृदय से मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। हर एक कोई करता है। ऐसा है नहीं क्योंकि हम देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सर्वोच्च इस विषय में लिया जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई को जो फैन फॉलोइंग है, गोल्डी ब्रार, लोग लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, ये सारे देशभक्त लोगों में से सारे खालिस्तानियों को एलिमिनेटिंग करने का या फिर वहां पे खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर ऐसा है तो सबका सीना 56 इंच का हो रहा है साहब, सीधी बात। मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ।
अब यहाँ पर ये बताएं सर कि बाप को हाथ लगाने क्या बच्चे को हाथ लगाने के पहले बाप से पूछ लिया होता, ये क्या चक्कर है सर? ये जरा बताएं। मतलब ये आप देखिए शाहरुख खान साहब का जो स्टेचर है वो कहाँ है? मैं आपको बोलता हूँ, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। ये नो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर एक ही या दो लोग ऐसे हैं, अगर कहीं पिक्चर चल रही होती है टीवी पे, अगर शाहरुख खान साहब वहाँ पर हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मजा आ जाता है मेरे को देख के। अब ये कहने की क्या जरूरत है? शाहरुख खान ये करने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिलन काबुल, ये मतलब क्या? दिस डज नॉट सूट मिस्टर शाहरुख खान एंड हिज स्टेचर। ही इज द एम्परर साहब, वो तो मतलब राजा धीराज हैं पूरे बॉलीवुड के, और सारे हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करते हैं। वो इस तरीके की मतलब बात कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। ये नहीं होना चाहिए। आप बताएं सर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सर, शाहरुख खान जी ये बहुत ही अच्छे एक नाचने गाने वालों में से है, और जिन्होंने नाच नाच कर, गाना गा गा कर, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे भारतीयों का मन बहलाया है, इसलिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। जवान पिक्चर जब आया था तो वो पिक्चर में एक डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ऐसा एक डायलॉग था। शाहरुख खान जी ने इस विषय को लेकर तो कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, कोई भी किसी भी प्रकार का टीका नहीं किया, टिप्पणी नहीं किया, या कोई भी मैसेज सेंड करने की मतलब कोशिश नहीं की। परंतु उनके जो चेले चपाटे थे, उन्होंने बहुत ही बवंडर मचाया है। देखिए शाहरुख खान साहब ने क्या मैसेज किया है, क्या मैसेज दिया है। ये डायरेक्टली मैसेज समीर वानखेड़े साहब को दिया है। समीर वानखेड़े साहब की और शाहरुख खान की कोई कंपैरिजन है क्या? ये गली गली, दरवाजे दरवाजे पर, बर्थडे पार्टी में, शादियों में जाकर ये नाचने गाने वाला शाहरुख खान है। उसी के माध्यम से उन्होंने पैसे कमाए हैं। समीर वानखेड़े गली गली, कुच्चे कुच्चे में जाकर नाचते नहीं है, गाते नहीं है। वो एक आईआरएस ऑफिसर है, वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट के हेड थे, और बेटे को हाथ लगाने से पहले कायदे के सामने, समीर वानखेड़े साहब का एक देशभक्ति का सेंटेंस है, यदि कायदे के सामने, मेरे देश के सामने बेटा क्या, बाप क्या और दादा क्या, उससे भी ग्रैंड सन भी अगर मेरे सामने आ गया, ग्रैंड फादर भी अगर मेरे सामने आ गया ना, तो भी मैं उसको किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यदि वो व्यक्ति मेरे देश के खिलाफ, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंस के खिलाफ अगर कोई भी काम करता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये समीर वानखेड़े साहब का क्लियरली स्टेटमेंट है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा। जी बताएं सर। शाहरुख खान साहब को अगर यदि आप इन दिनों में देखोगे तो जैसे पूरे देश का माहौल बढ़ रहा है, बच्चा बच्चा जय जय श्री राम के नारे लगाएगा, उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो पूरे देश का माहौल, जो हिंदुत्व का माहौल बन रहा है, तो शाहरुख खान साहब अभी तो गणपति के दर्शन कर रहे हैं, नवरात्रि के दर्शन कर रहे हैं। सर वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी गए थे सर, वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी जाकर, वहां पर जाकर दर्शन करके आए। सर देखिए तभी तो फिल्म हो गई हिट, दोनों फिल्में हिट हो गई। तो यही है ना, सर माँ का आशीर्वाद है सर। एक फिल्म में विश्व हिंदू परिषद का मदद लेना पड़ा, और दूसरे फिल्म में माता रानी का आशीर्वाद लेना पड़ा। बिल्कुल सर, माँ तो सबकी है, सर माँ तो सबकी है। इसमें और एक मैं ऐड करना चाहूंगा सर, एक सौदा करके मोसाद के ऊपर, इजराइल के ऊपर एक वेब सीरीज बनी है, जिसका ईडन एमिडी जो वहां का एक्टर है, और दूसरी एक्ट्रेस है शेनाली शेमो है, ये एक्ट्रेस है। इन दोनों ने पैलेस्टाइन के विरोध में अपने हाथ में हथियार लेकर देश के लिए लड़ने के लिए वो लोग चले गए। आर्मी का ऑफिसर्स का, उन लोगों ने आर्मी ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म पहन लिया और देश के लिए वो लोग लड़ने चले गए। मैं शाहरुख खान जी के चेले चपाटों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि यदि देश में ऐसी स्थिति निर्माण हो गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, तो शाहरुख खान सबसे पहले किसके बाजू से लड़ेंगे? चलो हम मानकर चलते हैं हिंदुस्तान के बाजू से लड़ेंगे। अब हिंदुस्तान के बाजू से लड़ेंगे तो कम से कम उनको ये तो बोलना चाहिए ना कि भाई मैं हिंदुस्तान के बाजू से, अगर हिंदुस्तानी सरकार, भारतीय सरकार यदि इजराइल के साथ में है तो मैं इजराइल के साथ में हूं, ये बोलकर दिखाए। चेले चपाटे को पूछना चाहूंगा मैं कि ये शाहरुख खान से आप लोग ये सेंटेंस बोल के दिखाए, नहीं बोलेंगे शाहरुख खान। और दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये एक चीज भूल जाते हैं लोग सर, एक चीज बहुत भूल जाते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सबके सामने। प्रदीप जी इसके बारे में जरा ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। देखिए साहब, आप समीर वानखेड़े साहब की कोर्ट में पिटीशन पढ़ें, उसमें
व्हाट्सएप चैट्स उन्होंने इंक्लूड करी हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी के साथ और मुत्था अशोक जैन के साथ, जहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आर्यन खान साहब से कुछ नहीं मिला है, वी हैव टू लेट हिम गो। और सामने से बोला गया है, नहीं ऊपर से ऑर्डर है आर्यन खान को पकड़ के रखिए। ये ऑर्डर दिया गया था समीर वानखेड़े को, तो समीर वानखेड़े ने कोई जान करके आर्यन खान को नहीं पकड़ा, उनको हुक्म दिया गया था that you have to deny him bail. Let's be very clear. And the order says that if you are a part of the investigation, how can you conduct an inquiry? Yes. You are part of the investigation. That's what the CAT Action said. should be taken against you also. Action should be taken against Mr. Gyaneshwar Singh. Absolutely true. And you know, sir, I would just like to, वानखेड़े जी जब भी हमने क्लोजली मॉनिटर किया था, जब इनको इन एक्शन थे एनसीबी में, 14 बड़े बड़े गैंग, दिग्गज गैंग को एलिमिनेट किया है, नार्को टेररिज्म को उन्होंने डायरेक्टली हिट किया है, टॉप के जो यू कैन से बदमाश थे, टॉप के जो गैंगस्टर्स थे, ड्रग पेडलर्स थे, जो टोटली डी गैंग से कनेक्टेड थे, उनको ऐसे एरिया से उठा के लेके आए जहां इम्पॉसिबल था किसी जो खुलेआम कर रहे थे धंधा अपना। तो और किस प्रकार से ड्रग्स ट्रेड हो रहा है, यू नो, कभी कॉफी के मग्स में, कभी केक्स के माध्यम से, कभी डार्क वेब के माध्यम से, कभी यू नो हाइड्रोपोनिक वीड घर में उगाने वाली बात, तो ऐसे अलग अलग तरीके के उन्होंने एक्सपोज कर दिया था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। कनाडा से इंपोर्ट हो रहा है यू नो कुकीज के पैकेट में, और उसके अंदर कॉन्ट्राबैंड अलग अलग टाइप के वीड जो हाई एकदम टॉप क्वालिटी के। तो ये देश सेवा किया है, ही हैज हेल्प। और उस समय में हम जानते हैं, हम लोग कवर कर रहे थे, छोटे से छोटा ड्रग पेडलर, तो कभी एनसीबी के नाम नहीं सुनते थे, उनको एनसीबी क्या है मालूम नहीं था, वो सोचते थे एनसीपी है जो शरद पवार साहब के पार्टी है, तो एनसीपी समझते थे। तो एनसीबी को एक ऐसे डिपार्टमेंट बना दिया जो लोग छोटे छोटे पेडलर्स तक डरने लगे। और आज जो हो रहा है, आई डोंट थिंक ये ठीक भी हो रहा है और लोग उसको मान भी रहे हैं, बिकॉज आज जितने वानखेड़े जी जाके कॉलेज में एक यू नो एक लीडरशिप फिगर बन गया है कि आपने कैसे काया पलट किया और आपने कोशिशें की, तो हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में उसको लेक्चर के लिए बुला रहे हैं, एक गर्व की बात है। वेरी ट्रू। तो ये माफिया आज फिर उठ के वापस आ गया है, बिकॉज ऐसे एनफोर्समेंट ऑफिसर को जिस प्रकार से सरकार मींस कोई भी चाहे वो एसआरके हो या कोई भी विक्टिमाइजेशन, डोंट यू थिंक सो? मिलन काबड़े साहब, जिस प्रकार समीर वानखेड़े साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ है, दिस इज क्लियर कट विक्टिमाइजेशन। मुझे तो हाल ही में है समीर जी, हाल ही में मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में समीर वानखेड़े साहब को एक बांग्लादेशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जान की धमकी दी जी। और इसके विषय में समीर वानखेड़े साहब को सीपी साहब के साथ में चर्चा हुई है और गोरेगांव पुलिस स्टेशन में उसमें दखल लेकर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट फाइल हुई है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, समीर वानखेड़े इनके बाप से नहीं डरता। ऐसे कितने चेले चपाटे और ऐसे कितने फालतू जो मतलब जिसको काम धंधे नहीं है, वो लोग आकर समीर वानखेड़े साहब जैसे आदमी के ऊपर और एक आईआरएस ऑफिसर के ऊपर धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक पहुंच समीर वानखेड़े साहब तक पहुंचने के पहले ये जितने भी कुकर्मी है, ये जितने भी ड्रग पेडलर्स है, इन सभी को हमारे जैसे देश प्रेमी, पूरे देश में बैठे हुए देश प्रेमी, आज समीर वानखेड़े साहब का फैन फॉलोइंग खाली मुंबई महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। आज समीर वानखेड़े साहब का फैन फॉलोइंग पूरे देश में फैल चुका है। उनके विचारों का एक मंच खड़ा हो चुका है। तो ये बांग्लादेशी जिसने भी धमकी दी है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहूंगा कि जिस दिन भी आप में दम होगा तो ये काम करके दिखाना, और हम जैसे देश प्रेमी समीर वानखेड़े साहब के साथ में जो खड़े हैं उनसे गुजरना पड़ेगा, उनसे आगे जाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आप समीर वानखेड़े साहब तक पहुंच पाओगे। दुरुस्त बात है। और वैसे भी अभी नवरात्रि है सर, भस्मासुर का वध हो चुका है, भस्मासुर का वध हो चुका है, कल रावण का भी वध होने वाला है। तो मुझे लगता है ये जितने भी आज की तारीख में नामी गिरामी राक्षस हैं उनका भी वध हो जाएगा अगले, मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 4 दिन में, बहुत जल्दी होने वाला है। वानखेड़े साहब जो हैं, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, क्योंकि हम लोगों की भी जो बातचीत हुई है बहुत लोगों से, बिकॉज वी हैव बीन कवरिंग दिस ड्रग्स थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जितने भी नामी गिरामी ड्रग माफिया थे वो हर एक कोई गाली देता है समीर वानखेड़े को। पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं? ये आपको मालूम है? बिल्कुल। अरे क्यों गाली देता है? पूरी बात तो सुन लो। वो गाली इसलिए देते हैं कि एक ऐसा आदमी है पैसा नहीं लेता,
नॉन करप्ट। मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये कैसा आदमी है, ये पैसा नहीं लेता यार। और ऐसे लोगों ने बोला जिनको डीआरआई में इतने साल अंदर डाल दिया था, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी हो ये आदमी नॉन करप्ट है। जो अंदर सजा भुगत के आए हैं वो लोग। कुछ बोल रहे थे सर आप, कावड़े साहब। सर आपने अभी नोट किया, हाल ही में पिछले 2-3 महीने 6 महीने में यदि आपने नोट किया होगा तो ड्रग्स का जो सप्लाई है मुंबई में और महाराष्ट्र में, ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये आपने देखा होगा। जी देखा। नासिक में पाया गया, सोलापुर, हर जिले में फैक्ट्री है अभी। फैक्ट्री ओपन कर रही है पब्लिक। मतलब जो डर था, समीर वानखेड़े साहब का जो डर था, वो डर कहीं ना कहीं तो किधर ना किधर तो कम होते दिखाई दे रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खत्म हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भारत सरकार को फिर से मैं कहना चाहूंगा कि समीर वानखेड़े साहब की मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जरूरत है। सर कृपया करके फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री साहब और भारत के हमारे मोदी साहब, अमित शाह साहब, सबसे मैं निवेदन करूंगा ये चैनल के माध्यम से कि समीर वानखेड़े साहब को कृपया फिर से मुंबई महाराष्ट्र के लिए लेकर। आपको मिलन जी, आपको 2018 में he has got gallantry award from the home minister himself, अमित शाह जी। Yes. अमित शाह जी के माध्यम से उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया था फॉर परफॉर्मेंस, सुपर परफॉर्मेंस वेयर एनसीबी इज कंसर्न्ड। तो ऐसे ऑफिसर्स के आज पूरे देश प्रचार देख रहे हैं कि उनका स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। द कंट्री यू गिविंग, हमारे जो आज के नौजवानों को आप गलत मैसेज दे रहे हो। So गलत मैसेज। which means कावड़े साहब, अगर कोई ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी कर रहा है, हो सकता है कि आर्यन खान केस में गलती हुई हो सकता है, सीधी सादी बात है। क्योंकि भाई आर्यन खान से कुछ मिला तो नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हर एक कोई ऑनेस्ट ऑफिसर 10 बार सोचेगा कि यार अगर ये समीर वानखेड़े के साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्या होगा। सीधी सादी बात है ना। तो ये मैसेज गलत जा रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और जितने जैसे हम लोगों ने बात करी ना, वो क्रिकेट वाला मैसेज वो भी गलत जा रहा है। पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट हो रही है वो मैसेज भी गलत जा रहा है कि हम इट्स ऑल राइट टू प्ले क्रिकेट विद अ टेररिस्ट नेशन, नहीं कर सकते सर। एंड रेड्स के माध्यम से व्हाट आर द सीबीआई गॉट, दैट इज अनदर थिंग। 14 रेड्स, 15 रेड, 30 रेड कर दिया और कई 150 रुपया, 200 रुपया, ये दिस इज व्हाट यू गॉट। अरे घर के अंदर 1200 रुपए भी नहीं थे बेचारे के। मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, और वो भी उनके दोनों बच्चों के सामने और वाइफ के सामने। और मतलब हद होती है यार, ये इतना बेइज्जत करना एक ऑनेस्ट ऑफिसर को, मतलब ये गलत बात है। सर चलते चलते आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी। नए नेताओं को उन्होंने, आदित्य ठाकरे जी जरा कोर्ट गए थे, बागी साहब गए थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, मिलन कापड़े साहब? सर हाल ही में इनकी एक सभा हुई थी जिसमें इन लोगों ने नए नेता, नए सचिव और नए नए पदाधिकारी नियुक्त किए थे। तो मैं तो इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी नेता और जितने भी ये अभी पदाधिकारी इन लोगों ने वो महाराष्ट्र के लेवल पर चुने हैं या सिलेक्ट किए हैं, इलेक्ट तो नहीं कर सकते, सिलेक्ट किए हैं, वो सारे नेताओं को लेकर आज कितना एक संभ्रम पूरे महाराष्ट्र भर इनके पार्टी में है। उद्धव साहब ठाकरे के पार्टी में जब निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं कि वहां के सारे लोग आज शिंदे सरकार में आना शुरू हो गया है और बहुत ही ज्यादा नाराजगी शुरू हो गई है। वो नाराजगी इसलिए है क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पक्ष है, उद्धव ठाकरे साहब का जो पक्ष है, पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज ये कहता है कि यदि कोई पदाधिकारी नियुक्त करना हो, यदि कोई पदा, तो एक बड़ी सभा ली जाए और सभा लेने के बाद मैक्सिमम लोगों से ये विचार लिया जाए कि ये व्यक्ति को हम नेता बना सकते हैं, इस व्यक्ति को हम सचिव बना सकते हैं, इस व्यक्ति को हम पार्टी का ये पद दे सकते हैं, वो पदाधिकारी बना सकते हैं। ये सभा लेने के पश्चात ये किया जाता है। परंतु आप देखेंगे ये प्रतिनिधि सभा नहीं थी इनकी, ये फतवा सभा थी। फतवा सभा मतलब जो नेता उद्धव साहब के पास नजदीक है, हाँ साहब आप लोग कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, महाराष्ट्र में आपका नाम हो रहा है, ऐसे जो लोग, ऐसे जो नेता है या जो उनको जो मिस फीडिंग करते हैं या मिस डायरेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को उद्धव साहब ने आज किसी को नेता बना दिया, किसी को पदाधिकारी घोषित कर दिया
और उसके कारण उनके पार्टी में आज जो नाराजगी, जो संभ्रम निर्माण हुआ है, आप देखोगे कि कल की सभा में उसका असर दिखाई देगा। और दूसरी बात, ये इनका जो बायलॉज है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो इनका उद्धव बाला ठाकरे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बिल्कुल उसके विरुद्ध में चल रहा है। और इसी कारण आज उनके पार्टी में पूरी तरह से एक संभ्रम कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है वहां पे? और आज के आपने बाईलॉज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, आप पूछ लीजिए किसी से भी, किसी भी बड़े नेता से पूछ लीजिए, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा किसी है? को शायद मेरे ख्याल से हमारे जो शिंदे सरकार में जो लोग हैं, लीगल मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लीगल सेल के जो शिंदे सरकार में जो लोग हैं हमारे, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं तो भी इनको चैलेंज करूंगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज के हिसाब से इनकी पार्टी चल रही है क्या, ये तो भी मैं आने वाले समय में मैं चैलेंज करने की कोशिश करूंगा। आपको ये बात करना, पार्टी किस लिए टूटा, पार्टी किस लिए टूटा? बिकॉज पार्टी लीडरशिप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा था, और देश का कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से क्या होना चाहिए। बिल्कुल नहीं था। और ये देखो सर, नेता जो होता है ना, हार्डकोर जो ग्राउंड लेवल का जो नेता होता है, वो दो प्रकार होते हैं। एक तो चाटुकारिता नेता होता है, और दूसरा नेता होता है कि उसको सिर्फ समाज, लोग, देश, इसके बारे में पड़ी होती है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास में जो आप देखोगे ना, नेताओं की जो फौज है, या उनके साथ में आदित्य साहब की जो फौज है जो खड़ी करते थे, तो ये पहले कैटेगरी वाले आते हैं, चाटुकारिता वाले ज्यादा आते हैं। और बाला साहब ठाकरे के पास में जो टीम थी, जो फौज थी, जो सेना थी, आप वो देखेंगे तो सेकंड कैटेगरी वाले थे, जो जिनको केवल और केवल समाज, लोग, हिंदुस्तानी, इन विषय को लेकर ही वो मतलब प्रेरित थे। और वही फौज बाला साहब ठाकरे जी के पास में थी। और 4-5 नाम लेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इनको ग्रासरूट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अनिल परब हो या आलिशान बंगले में रहते हैं, राउत हो, ऑफिस से बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे, तो ग्राउंड का क्या कर पाएंगे, क्या बता पाएंगे? हाँ, इनको एसआरए के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है इनके नेताओं को, क्योंकि एसआरए में बहुत कुछ रेवेन्यू खाने को मिल जाता है, इसलिए ये एसआरए के बारे में ये लोग जानते हैं। बट एसआरए में एक्चुअल जो वहां के लोग रहते हैं, उनकी समस्या क्या है, ये बस वहीं तक सीमित हो जाते हैं, गटर वाटर मीटर तक सीमित हो जाते हैं, रीडेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे नहीं। और अगर रीडेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो फिर वो आ जाता है विषय कि भाई मला किती तुला किती। तो ये कहीं खिचड़ी घोटाले में कुछ डेवलपमेंट? सर, खिचड़ी घोटाला तो अभी एक खिचड़ी घोटाला का जो बहुत ही मास्टरमाइंड है सूरज चौहान, उसको तो अभी मैंने सुना है कि उनको अभी साइड ट्रैक कर दिया है पूरी तरह से, क्योंकि इनकी नीति है ना कि अगर कोई घोटाले में पाया गया तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर दो। तो उस प्रकार से अभी सूरज चौहान को मेरे ख्याल से थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया है। और भी घोटाले में बहुत सारे नाम है, तो वो घोटाले के खिचड़ी, अभी वो बवाल ऐसा हो गया पूरे महाराष्ट्र में, मी खिचड़ी नाही खाल्ली, मी तो टोप उचलणार नाही। मतलब मैंने वो खिचड़ी खाई नहीं, तो वो जो उसका जो बर्तन होता है, वो जो टोप होता है, बर्तन होता है, यूटेंसिल्स जो होता है, वो मैं नहीं उठाऊंगा। वैसा टीम में बोलते हैं ना, पार्टी में बोलते हैं ना कि भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, वैसा वो बोलते खिचड़ी मी ना खाली, मी टोप उचलना, मैं बर्तन नहीं उठाऊंगा। Right, thank you so much, sir. Milind Kavle sir, it's been a great pleasure talking to you as always. Thank you very much, wonderful talking to you. नमस्कार सर, एक बार फिर आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल विजयदशमी है उसकी भी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू, जय माता दी। Well, that was nice, that was really nice. But the only thing is that I think Sameer Wankhede deserves better. सर एक ही सही, 2018 में जिसने गारंटी अवार्ड दी है, एंड होम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज गिवन द अवार्ड। And number two, as far as the Aryan Khan case is concerned, let's be very clear, you have a legal department. The legal department could have advised, hey, listen, there is no case against Mr. Aryan Khan, we can't go ahead with this, that's it. Where is that advice? You file the charge sheet. You file the charge sheet. So where is that advice? That advice has to come from the legal department to say, hey, Mr. Sameer Wankhede, whosoever is the IO in this particular case, we should let you know that there is no evidence in this matter, so Mr. Aryan Khan has to go. That's it. Which is exactly what Mr. Sameer Wankhede has attached in evidence with regard to his WhatsApp chats in the court. Now, I don't know why, I don't really know why the
Ministry of Home Affairs and everybody else concerned is not taking this very seriously enough and rehabilitating a very, very, very honest officer. I hope this thing gets resolved very fast, because nobody wants to be in Sameer Wankade's position right now. You can't. I mean, look at him, patriotic man, everybody loves him, and look at how the government has treated him, which is rather sad.